Hi everyone, welcome back to the session. I hope you all are doing good. You all are great. So I welcome everyone in another video. You can see the important news in front of your screen is that the news here is about repo rate cut. So in the previous months as well, in the month of February, in the month of April itself, we saw cut in the repo rate. But now these are just the expectations. Okay, now I'm just making it clear, this is not direct, this is not declared yet, but these are the expectations that since that there is there we have when it comes on to inflation, we see the projections have been lowered down. So we also are comparing and we also are linking it with the repo rate कि हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब हमारी ये जो मीटिंग है वो कंप्लीट होगी. सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन हियर कि हो सकता है कि अभी भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट से जो कट है वो फिर से हो जाए. ठीक है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट? सो वी हैव 6%. बट बिफोर दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सबसे पहले करंट रेट के रेपो रेट के बारे में पता हो. ठीक है, फिर उसके बाद अगर रेपो रेट के अंदर चेंज आएगा तो हमारे इंडिविजुअल्स की लाइफ में कैसे चेंज आएगा, और अगर रेपो रेट और इन्फ्लेशन के साथ ही कैसे लिंक्ड है, और जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है इसके साथ एसोसिएटेड है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो दैट इफ टुमारो देयर इज एनी आर्टिकल व्हिच इज रिलेटेड टू इट, यू पीपल विल बी इजीली decode the concepts. If why I always say that current affairs and economics are very very much important, because it is all related to current affairs. It's all keeps that that keeps ongoing. This is not like history that something can be changed and something can be molded. But if you know the static portion, for example, some of the students directly jump onto the newspaper without having any knowledge about the static portion. So for those students, this is one of the example कि बेटा अगर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर के ऊपर जाओगे तो आपके पास ये सबसे पहले न्यूज है कि हाँ रेपो रेट में हो सकता है कि दीज आर द एक्सपेक्टेशंस कि वील सी 25% बेसिस पॉइंट कट. ओके, 25 बेसिस पॉइंट कट. So when you will not have an idea about what is repo rate, how it is linked with the inflation, what are how what is the current rate here, and how it is linked with our day-to-day life also, ये general public को कैसे impact करेगा, then how it will impact our money supply also. So these are the many things. Firstly, static portion के बारे में जो है तुम लोग को knowledge होना चाहिए. Then only it is very important that you jump towards the current affairs. Okay. Again, so if we have new joinees here, this is the link of my telegram channel बच्चे, which is economy with Payal. So if you have any doubts related to your preparation, if you have any confusion in your mind maybe, so you can just join this particular channel and you can ask questions here. You can ask your questions there, and of course I'll address that. Okay, now firstly we'll start this this entire video is going to be blank here. We'll see the concepts one by one. So firstly, what is important here to know from from the news and from the concepts itself, that is repo rate. Okay, that is repo rate. So this is one of the instrument. Okay, this is one of the instrument which is used by the central bank to ensure that there is stability in an economy. Okay, so this ensures and this manages our money supply in an economy. ठीक है, to ensure stabilization. ठीक है, to ensure stabilization. So this is for this purpose we have repo rate. अब ये repo rate है क्या exactly बच्चे? तो देखो लोन जो है हमें मिलता है. ठीक है, सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास कि देखो भाई मेरे को लोन चाहिए, मेरे को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, तो ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ लोन विच इज दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट. रेपो रेट इज व्हाट? दिस इज इंटरेस्ट रेट. ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट rate which is charged by the RBI to the commercial bank when it is giving money to them, that too for a shorter period of time. That is on what? That is for short term loans against government securities. Okay, which acts here as collateral. ठीक है, अब अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो बच्चे यहां से आपको एक और ज्यादा समझ आएगा कि ये क्या है? रीपरचेज अग्रीमेंट. ओके, ये क्या है? रीपरचेज अग्रीमेंट. रीपरचेज अग्रीमेंट मतलब कि हमने कुछ दिया था, अब आप उसको रीपरचेज कर लो, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने समझ लो होम लोन लेना, ठीक है, एग्जाम्पल हियर कि फॉर एग्जाम्पल आई गो टू द बैंक एंड आई वांट होम लोन. अब यहाँ पे होम लोन की जब मैं होम लोन लूंगी तो यहाँ पे मैं कोलेटरल क्या रखूंगी? मैं रखूंगी यहाँ पे होम एज अ कोलेटरल. ठीक है, सिमिलर इज द केस हियर. ठीक है, सिमिलर इज द केस हियर बट नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर.
सो यहाँ पे क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक्स जब लोन लेते हैं किससे, आरबीआई से, तो वो इन रिटर्न या फिर कोलेटरल में क्या रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज ए कोलेटरल रखते हैं। और जब भी जो फुल अमाउंट है दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑल्सो, जब वो दे दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक कैन रीपरचेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, इंटरेस्ट रेट साथ साथ चार्ज होता रहेगा, and whenever there will be full settlement they can repurchase their government security. That is the reason it is known as repo rate. Okay, now we see the news that this is repo rate is decreasing. ठीक है, सो कंसीडर कि जब रेपो रेट डिक्रीज होगा ना बच्चे, तो ये क्या करेगा, हमारी मनी सप्लाई जो हमारी इकोनॉमी में है उसको इम्पैक्ट करेगा। मनी सप्लाई कैसे, कि हमारे अगर सप्लाई जो है मनी की, अगर वो घूमती रहती है मतलब अगर मनी जो है पूरी इकोनॉमी में जो है वो अगर सर्कुलेट कर रही है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बेटर। व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई यूएस इज यूएस बिकॉज देयर इज हाई सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई जो है वो उसकी हाई सर्कुलेशन है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द रीजन दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली इंडिया इज मोर देन देयर। ओके, सो मोर देयर। So this is what is repo rate, and when there is decrease in it ना, so what will happen, जैसे अब क्या करा है कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया। अब जब आरबीआई से लोन लिया, पहले क्या था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, है ना, तो मतलब जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा आरबीआई को पे कर रहा था। अब क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक को भी बेनिफिट होगा, है ना। दिस विल बेनिफिट व्हाट, दिस विल बेनिफिट कमर्शियल बैंक, क्योंकि अब इनको जो है वो लेस इंटरेस्ट रेट देना है आरबीआई को। और जब ये लेस इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं इनको, तो इनके पास क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वो मनी इनके पास बच जाएगी, है ना। इनके पास क्या होगा, मनी जो है वो कहीं ना कहीं सरप्लस अमाउंट जो है वो बच जाएगा। नाउ हाउ कमर्शियल बैंक विल यूटिलाइज इट, सिंस कमर्शियल बैंक का जो एक एक्टिविटी है पैसे कमाने का, वो क्या है कि जब वो लोन देते हैं तो जब उनको इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं इंडिविजुअल्स एज इन हम लोगों से, सो दैट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रॉफिट्स फॉर देम। ओके, सो दैट दे विल यूटिलाइज दिस मनी इन द सर्कुलेशन नाउ। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जो लोन है ना वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अब हम क्यों लोन लेंगे, क्योंकि सिंस यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है ये भी हम लोगों को क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चार्ज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स के लिए भी कम हो जाएंगे। दैट इज द रीजन वी कॉन्टिन्यूअसली से कि अगर रेपो रेट कम होगा तो स्पेसिफिकली जो होम लोन है उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, होम लोन में ज्यादा बेनिफिट होता है, सिमिलरली रियल एस्टेट में ज्यादा बेनिफिट होता है, जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा, और अगर कम इंटरेस्ट रेट होगा तो मेरे को जो है ना वो लोन बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगी कि हाँ अभी जो है ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो कम चल रहे हैं, तो मैं जाऊंगी और मैं इसको परचेज कर लूंगी। ठीक है, now what is the specific term which is given in your newspaper when it comes on to repo rate, decrease in repo rate? So this is known as easy monetary policy. Okay, this is known as easy monetary policy. ठीक है, in some another video we'll see about the monetary policy itself, the meaning, the comprehensive meaning of it. But easy monetary policy क्या है कि something RBI has loosened out. ठीक है, RBI क्या चाहती है कि कुछ ना कुछ जो है ना मतलब इकोनॉमी में easy हो जाए। अब वो कुछ क्या है, that is money supply. Okay, that is money supply. For ensuring that there is increase in the money supply, RBI reduces its what? RBI reduces its instruments that are part of your monetary policy, and that are the monetary policy instruments. अब यहाँ से तुम लोग बोलोगे कि मैम मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी। सो बच्चे ध्यान से सुनना, जब मैंने क्या बोला कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम क्या करेंगे, भाग के हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, हम बोलेंगे कि अभी जो है इंटरेस्ट रेट कम है, मेरे को पैसा दे दो। ठीक है, अब जब पैसा उन्होंने लिया, हम लोग ने पैसा लिया, हम इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट तो दे ही रहे हैं, अब वो क्या होगा, मनी जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगी इकोनॉमी में, एंड दैट इज द रीजन वी से दैट हमारी पॉकेट में क्या होगा, पैसा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो हमने क्या देखा था, कोरोना के पहले केस क्या था, जब हम पैंडेमिक की यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, पैंडेमिक के पहले केस क्या था कि हम जो है एक कंसीडरिंग कि मैं जो है मॉनिटरी मैं जो है वो इंटरेस्ट रेट पे कर रही थी 15,000। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल हियर दैट आई वाज पेइंग 15,000 एज EMI हियर। अब क्या हुआ अचानक से, व्हेन देयर वाज during the pandemic time when RBI wanted to increase the money supply in an economy, इसने क्या करा, RBI ने क्या करा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको कम कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब मैं पहले 15,000 दे रही थी, नाउ आई एम पेइंग जस्ट 13,000। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास सरप्लस या फिर मेरे पास जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी कितना बचा मेरे पास, दैट इज 2,000। सो नाउ आई ट्राई टू
spend these 2000 maybe on some purchase of some another good, so वो circulation जो है economy में बढ़ती गई. That is how it is directly related to the money supply and it is directly related to the circulation in economy. Now we read that easy monetary policy. Okay, अब यहाँ पे जो दूसरा word है वो क्या है, तो यहाँ पे तो हमारे पास दो words हैं. That is one easy monetary policy and other one is tight monetary policy. Okay, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देंगे. ठीक है, अब इजी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सॉरी हमारी आरबीआई क्या करेगी, जो इंटरेस्ट रेट है, अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर हम रेपो रेट की एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये जो है रेपो रेट है. ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा ना बच्चे, तो हमेशा मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में ज्यादा होगी. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर देयर इज एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. कभी भी अगर इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो गिरता है, अगर वो डिक्रीज होता है, तो देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ना इसको इंक्रीज कर देगी, सो दैट मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी कैन बी रिड्यूस्ड. और ये क्यों रिड्यूस करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में. ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो ज्यादा हो जाता है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करती है कि अब मनी सप्लाई है, क्योंकि लोगों के पॉकेट में ज्यादा पैसा होगा तो प्रोड्यूसर भी तो उनको ज्यादा चार्ज करेंगे ना, तो मनी सप्लाई जो है वो कम करने के लिए क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि जो मनी सप्लाई वो कम हो जाए. ठीक है, सिमिलर इज द केस हियर. दैट इज द रीजन वी आर कंसीडरिंग एंड वी आर just relating it with what, relating it with inflation. Now we see that there is easy inflation that is there. That is the reason that government wants कि लोगों के पॉकेट में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो. ठीक है, अब हमने क्या करें, यहाँ पे कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है रेपो रेट के बारे में हमने जाना, और हमने ये भी देखा कि हाउस लोन को कैसे इम्पैक्ट करता है, बाकी जो चीजें हैं इसके साथ कैसे इम्पैक्ट होती है. नाउ वी हैव अगेन फ्यू ऑफ द टर्मिनोलॉजीज हियर. ठीक है, सबसे पहले क्या है, अकोमोडेटिव स्टांस, accommodative stance, and then we have neutral stance as well. ठीक है, न्यूट्रल स्टांस. अब अगर मैं accommodative एंड न्यूट्रल स्टांस की बात करूँ, तो न्यूट्रल क्या है, बैलेंस्ड. ओके, सो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं न्यूट्रल स्टांस की बात करूँ, सो ये क्या है, एक ऐसा पॉलिसी है विच इज वेट एंड वॉच पॉलिसी. ओके, विच इज वेट एंड वॉच पॉलिसी, कि मतलब अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि होने क्या वाला है. आरबीआई हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर दे, आरबीआई हो सकता है इंटरेस्ट रेट को कम भी कर दे. दिस इज अ न्यूट्रल स्टांस वेयर वी गो. अकोमोडेटिव स्टांस क्या है, दिस इज जस्ट लाइक इजी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक इजी मॉनेटरी पॉलिसी, कि यहाँ पे हम जो है हम इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और हम जो है लोन को अकोमोडेटिव बना रहे हैं, हम जो लोन है ताकि वो अफोर्डेबल हो सके. सिमिलरली मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में इंक्रीज हो सके. सो दिस इज अनदर नेम ऑफ easy monetary policy. Similarly, we have another word here which is known as hawkish. Okay, which is known as hawkish stance. So this is you can say inverse of it. Inverse of it as in कि ये क्या है, एंटेनम है इसका. हमने accommodative में क्या देखा, easy monetary policy. अब हमने क्या देखा कि अकोमोडेटिव में क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाते हैं ना, ताकि जो जो हमारी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ सके. सिमिलरली हॉकिश स्टांस क्या है कि हमने क्या करा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया ताकि हमारी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हो सके. ठीक है, सो दीज आर द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव. हॉकिश मींस यहाँ पे हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं. दीज आर द मेनी वर्ड्स दैट यू विल सी इन द news itself. That is the reason I've taken this particular news, so that I can discuss with all of you the many of the words, the terminologies, the important concepts that are in economics. कि आप कल को कभी भी न्यूज़पेपर देखोगे तो आप तुम्हें ये जो है ये सारी जो टर्म्स है वो दिखेंगी, एंड यू विल बी एबल टू नो हियर कि इनका मतलब क्या है, एंड यू विल बी एबल टू इजिली रिलेट विद इट. ओके, सो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ. व्हाट इज रेपो रेट, अगर ये डिक्रीज होता है तो वो कैसे हेल्प करेगा हमारी इकोनॉमी को, इन जनरल पब्लिक को कैसे करेगा, कमर्शियल बैंक के साथ कैसे लिंक्ड है. आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, आई नो दैट you will be clear with repo rate, you will be clear with easy monetary policy, you will be able to get an idea about the tight monetary policy and everything that is related to it. Okay, still if you people have any doubt, you people can comment down that ma'am ये वाली जो चीज है वो समझ नहीं आई. Of course I'll address it. Okay, and in some another video we'll see the entire comprehensive
the meaning of monetary policy itself, and maybe monetary policy committee also. Okay, so all right, thank you so much for joining this particular video. I hope this is very helpful to all of you. Again, if you have any doubt, you can just pin that in the comment section. Of course, I'll address it. Okay, all right, thank you. I'll meet you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Thank you.